নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড, সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। নিউজ ঝাড়খণ্ড স্পন্সর্ড বাই সিটিএ এভিয়েশন অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট। শনিবার শ্রমিক ও ভেলুরে চিকিৎসা করার জন্য যাওয়া লোকেদের চেন্নাইয়ের কাটপাড়ি থেকে টাটানগরে পৌঁছায় ট্রেনটি। তাতে কোলহানের প্রায় 243 জন যাত্রী সহ রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় 1400 জন যাত্রী টাটানগর রেল স্টেশনে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একই জেলার জেলা প্রশাসক সহ এসএসপি সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি রেল কর্মকর্তা, রেল সিভিল ডিফেন্সের জওয়ান সহ সুরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পুলিশ এবং আরপিএফ জওয়ান মোতায়েন করা হয়, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে যাত্রী এবং শ্রমিকদের থার্মাল স্ক্রিনিং এর পর যাত্রীদের জেলা থেকে আসা বাসে করে তাদের গন্তব্যস্থলের उद्देश्य रवाना करा है। सीएमसी में 3 महीने से हम लोग थे और धनबाद जा रहे हैं। बहुत खुशी लग रहा है कि आज हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, पिताजी हमारे ब्रेन कैंसर पेशेंट हैं, उनके लिए गए थे। दस है पिताजी का ट्रीटमेंट कैंसिल हो गया था, तो अभी भी वो फंसे हुए हैं, पिताजी और छोटा भाई। अच्छा लग रहा है, घर में कोई जेंट्स नहीं थे, अभी जा रहे हैं, बहुत सारा जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो बीमार लोग वेलोर में चिकित्सा लाभ के लिए गए हुए थे वो भी लौट रहे हैं, कुछ और भी परिवारजन लौट रहे हैं उनके साथ में। सभी लोग हमारे जिले के और अन्य जिलों के निवासी हैं। कुल लगभग 1485 लोगों के आने की सूचना प्राप्त है और इसका দিনরাত হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় তৎপর সাফাই কর্মীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। জামশেদপুরের যুগসালায় স্থিত রাজস্থান সেবা সদন, যেখানে বকেয়া বেতন দেওয়ার দাবিতে সাফাই কর্মীরা হাসপাতাল প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে। তারা বলেন যে বৈশ্বিক সংকটের এই সময় তারা হাসপাতালে সেবা দিচ্ছেন, তবে হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট গত 2 মাস ধরে তাদের বেতন দিচ্ছে না। দ্বিতীয় ঘটনাটি বিষ্ণুপুরের মেডিকা হাসপাতালের। এখানে কর্মীরা গত 2 মাস ধরে হাসপাতাল প্রশাসনের উপরে বেতন না দেওয়ার অভিযোগ করে কাজের বহিষ্কার করেছেন। পিএফ এবং ইএসআইসি তাদের বেতন থেকে কাটা হয়। তারা বলেন যে ইএসআইসি সুবিধা নিতে গেলে তাদের এই বলে ফেরত পাঠানো হয়েছে যে তাদের ইএসআইতে কোনো টাকা জমা নেই। এই ধরনের পরিস্থিতিতে যদি এই সাফাই কর্মীরা বিশ্বব্যাপী সংকটের সময় আন্দোলন করে, তবে যে পরিস্থিতি হবে তা অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ঝাড়খণ্ড সরকার তাদের দাবি বিবেচনা করে বেসরকারি হাসপাতাল সম্পর্কিত অধ্যাদেশ জারি করা নিতান্ত প্রয়োজন। पेमेंट नहीं मिला, इसका क्या बोलते हैं, मार्च का पैसा नहीं मिला, आधा पैसा मिला, हम लोग पूरा पैसा चाहिए। तब पूरा काम कर रहे हैं, बैठे हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे नहीं है, हम लोग मेजरमेंट को खबर किए चीज को पहले कि सर आइए हम लोग को बताइए। मेजरमेंट ने फोन आपको पाटीवाल भैया को बोला कि नहीं हम नहीं आएंगे, जो करना है हम लोग करने दीजिए। तो अपना गेट जाम करके बैठे, काम चालू है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, भैया वाला को बुलाए। দেশের করোনা সংকটের মধ্যে ঝাড়খণ্ডে বেসরকারি স্কুলগুলি স্বেচ্ছাচারিতা অব্যাহত রয়েছে, যেখানে প্রায় দিনই বেসরকারি স্কুলগুলি লকডাউন পিরিয়ডের জন্য ফি জমা দেওয়ার ব্যাপারে অভিভাবকদের উপরে চাপ সৃষ্টি করছে। তবে এই সম্পর্কে অভিভাবক সংঘ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলই নিয়মিত বেসরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্পষ্ট করার জন্য ক্রমাগত রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। এদিকে আজ আবারও আজসুর একটি প্রতিনিধি মণ্ডল জেলা সদরে পৌঁছে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। জমা দেওয়া স্মারকলিপির মধ্যে তারা ঝাড়খণ্ড সরকারের কাছে বেসরকারি স্কুলগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করার জন্য দাবি জানিয়েছে। তারা বলেছেন যে বেসরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত না নিলে আগামী দিনগুলিতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। स्कूल जो फीस को लेकर, मामला को लेकर स्कूल प्रबंधक और अभिभावक के बीच जिस तरह का जो आपसी संबंध है, ये कहीं न कहीं दरार बढ़ते जा रहा है। स्कूल प्रबंधक द्वारा ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई फीस आपको देना है। और कुछ दिन में अखबार के माध्यम से आया था, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा बयान आया था कि सिर्फ 3 महीने का लॉकडाउन के तहत ये फीस नहीं लगेगी। तो हम लोग एक मांग, आंसू पार्टी ये मांग करती है कि स्थिति को स्पष्ट किया जाए, जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया जाए फीस देना है या नहीं देना। कहीं ना कहीं ये आपसी जो संबंध है कहीं ना कहीं खराब हो जा रहा है, और इसका जो संबंध खराब होने से आगे जाकर इनका बहुत स्थिति खराब हो सकती है। কোলহানের নতুন ডিআইজি রাজীব রঞ্জন সিং সরাইকেলা জেলা সফরে, যেখানে তিনি আদিত্যপুর থানা পরিদর্শন করেছেন। এই সময় ডিআইজি বিশ্বব্যাপী সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করা 120 জন পুলিশ কর্মীদের জন্য উদ্যোক্তাদের দেওয়া পিপিটি কিট সরবরাহ করেন। একই সঙ্গে তিনি পুলিশ সদস্যদের সাবধানতা অবলম্বন করে ডিউটি করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে কোনো জওয়ানের যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় তবে তাকে অবশ্যই তার কর্মকর্তাদের অবগত করতে হবে। একই সাথে অপরাধের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে
করোনার সংকটের সময় জেলা পুলিশ অপরাধীদের দমন করতে সক্ষম। তিনি নতুন এসপি মোহাম্মদ আরশির প্রশংসা করে বলেন, তিনি যথেষ্ট উদ্যমী হওয়ার পাশাপাশি নতুন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আরো ভালো প্রমাণিত হবেন বলে আশা করছেন। और आदित्य ग्रुप के व्यवसायी समूह हैं, उनके मुखिया ज्ञानचंद जायसवाल जी के द्वारा पीपी किट 120 पीपी किट दिया गया है, जो जिसका उपयोग पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाएगा। हम समझते हैं कि मैं पूरे पुलिस परिवार को मुखिया होने के नाते दूंगा कि इस तरह की पहल इनके द्वारा की गई। দেশে করোনা সংকটের প্রভাব কম হওয়ার নাম নিচ্ছে না। ঝাড়খণ্ডে পালামু শ্রমিকরা যারা পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামের শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল, সেখানে পেটের জ্বালা এই শ্রমিকদের তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য করে এবং এরপরে সমস্ত শ্রমিকরাই হেঁটেই তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হন, যেখান থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তারা জামশেদপুর হয়ে পালামু যাচ্ছে। জামশেদপুর ব্লক কার্যালয়ে পুলিশ তাদের থামিয়ে দিয়েছে, তবে তাদের জন্য খাবার বা জল সরবরাহ করা হয়নি। যদিও যৌথ গ্রাম সুরক্ষা সমিতি এই শ্রমিকদের খাবার ও জল সরবরাহের দাবি করেছে। গ্রাম সুরক্ষা কমিটির অধ্যক্ষ রাম সিং মুন্ডা শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত মানুষের দুর্ভোগের দিকে নজর রেখে 14 মে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি লেখার দাবি করেছেন। अभी दिन प्रतिदिन देश के जो प्रवासी मजदूर हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में है। हजारों 500 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हमारे बीच में खड़गपुर पश्चिम बंगाल से उड़ीसा से कुछ लोग आए हुए हैं और ये लोग भी पैदल चल करके हमारे प्रखंड मुख्यालय तक पहुँचे हैं किसी तरह से। अब इनको क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था की जा रही है। ये भूखे प्यासे आए हैं, अभी भी भोजन उपलब्ध नहीं हुआ है और भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। तो हम वैसे लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि सभी लोगों का कैसे लाभ हो और ये कोरोना वायरस से हम लोग सब निपट पाए, यही सब हम मांगे हैं। जिंदेश्वरी सिंह कहाँ काम करते थे? झालग्राम सडिया झारग्राम पश्चिम बंगाल। क्या काम करते थे? सरिया सेटिंग का। तो गांव कहाँ पड़ता? गांव तो पलामू पड़ता है। तो वहाँ से कहाँ निकल गए आप लोग? खाना पीना की दिक्कत हुआ थी, नहीं मिला। अच्छा, वहाँ खाना पीना नहीं मिला? नहीं। तो आप लोग कैसे आए? पैदल आए। अच्छा, तो अभी कहाँ है? अभी तो टाटा में है, थाना से पकड़ के लाया। सुबह से खाना पीना मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। कितने लोग हैं आप लोग? 10 आदमी। করোনা সংকটকে ঘিরে পুরো দেশে লকডাউন অব্যাহত রয়েছে। আদিত্যপুর থানা অন্তর্গত একই সাথে লকডাউনকে উল্লঙ্ঘন করে 5 দিন আগে ভাটিয়া বস্তির আশিস গ্যাং ব্যবসায়ী নীরজ গুপ্তা ও তার ছেলে অঙ্কিতের উপর প্রাণঘাতী হামলা করে, যার অভিযোগ আদিত্যপুর থানায় দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে অপরাধীদের দ্বারা ব্যবসায়ীদের উপরে মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য অবিরাম চাপ সৃষ্টি করা হয়। এদিকে আজ সকালে আইন শৃঙ্খলা উল্লঙ্ঘন করে আশিস গ্যাংয়ের 2 জন দুষ্কৃতী তরোয়াল নিয়ে ব্যবসায়ী নীরজ গুপ্তার দোকানে এসে একের পর এক তরোয়াল দিয়ে হামলা শুরু করে। সূচনা পাওয়ার সাথে সাথে আদিত্যপুর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, তবে স্থানীয় লোকজনের বিক্ষোভ দেখে পুলিশকে অতিরিক্ত সুরক্ষা বাহিনী ডাকতে হয়। এদিকে স্থানীয় জনগণের বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অপরাধীদের পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে। অন্যদিকে অপরাধীরা পালাতে সক্ষম হয়। বলা হচ্ছে যে এলাকায় আফিম, চরস ও গাঁজার ব্যবসা ব্যাপক পরিমাণে চলছে, যা আশিস গ্যাং পরিচালনা করে। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে 5 দিন আগে ঘটনার পরেও পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয়নি। স্থানীয় লোকজনের মধ্যে পুলিশের কার্যশৈলী সম্পর্কে অত্যন্ত অসন্তুষ্টি দেখা যায়। घटना घटी है और हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग गए, लेकिन छापामारी के कोई मिला नहीं, लेकिन उनके परिजन को हम लोग पूछताछ ले लाए हैं। कुछ ही लोग का दुकान पर लेन देन का कुछ उधारी का बाकी मांग रहा था, अच्छा। और तो इसमें इसी को लेकर आपस में विवाद किया। हाँ, पहचान हुआ है, काफी अच्छा है। क्या जो घटना हुआ, पुलिस को मोटा पैसा मिला है, इसलिए मामला को दबा दिया गया है। 6 दिन पहले हुआ तो 5 दिन पहले FIR, कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये पुलिस प्रशासन है, झारखंड पुलिस। यहाँ पे सुबह के समय में दुकान खुला हुआ था और यहाँ पे फल का दुकान था, हम यहाँ पे बैठे थे तो 2 लड़का एक गली से आया मुँह टू बांध के। वहाँ पे दुकान में पूरा हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो हम जाके गेट के पास से देख रहे तो तलवार से पूरा मार रहा है। दौड़ते हुए गए दुकान में, क्या हो रहा है, काय का आवाज आ रहा, तो देख रहे पूरा तलवार से मार रहा है। एक आदमी को 2 आदमी मिल के, तो हम पूरा शोर मचाए,
तभी यहाँ का पब्लिक सब जो है जमा हुआ, तब तक भाग गया। भागा इधर से, एक कोना से भागा तो 2 तलवार था हाथ में। जब खदेड़े तो वहाँ पे तलवार छूट गया उसका बाद सब पुलिस को बुलाया गया और इतना पब्लिक जो है। इससे पहले जो 4 रोज पहले जो घटना हुआ, जो लड़का सब था वही लड़का लोग था। नाम हमको नहीं पता, हम नाम नहीं बता पाएंगे। नहीं, फायरिंग करते हुए हम नहीं देखे हैं। तलवार हाथ में लेके दौड़ रहा था। जब यहाँ से खदेड़ा गया है तो पकड़ाने के डर से जो तलवार मैंने छोड़ के भागा, या इससे पीछे फेंका ताकि घायल आदमी को हम लोग सब आदमी मिलकर अस्पताल पहुंचा। उसका पेट यहाँ पे पूरा चिरा हुआ था, सर पे भी गर्दन चिरा हुआ है, सर फटा हुआ है। করোনা ভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে ঝাড়খণ্ডে গুটখা, তামাক, সিগারেট ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপরও উড়িষ্যার ব্যবসায়ীরা এই মাদক ব্যবসা ব্যাপকভাবে চালাচ্ছে। বলা হচ্ছে যে 5 টাকা মূল্যের তামাক 15 টাকায়, গুটখা 20 থেকে 25 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এদিকে হলদিপুকুর ও যুগসালাইতে বিপুল পরিমাণে মাদক দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে। চেকপোস্টে মোতায়েন ম্যাজিস্ট্রেট জিতেন্দ্র গ্রোভ দ্বারা কোবালি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোবালি পুলিশ মাদকদ্রব্য গাড়ি এবং উভয় চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানায় নিয়ে আসে। ऑटो है दोनों, उसमें जो है पान मसाला था, जर्दा था और सिगरेट है। दोनों ऑटो को चालक को पर केस की गई है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 2 आदमी को। वाहन मालिक पर भी मामला दर्ज हो रहा है। वाहन मालिक इस झारखंड उड़ीसा तिरिंग बॉर्डर के समकक्ष जो हमारा पालीडी चेक पोस्ट है, इसमें हम लोग जांच के दौरान पाए कि एक टेम्पू, डाला वाला टेम्पू में 20 पैकेट कमला पसंद, 20 पैकेट सफल, जर्दा सहित प्राप्त हुआ। और एक टेम्पू से 25 पैकेट कमला पसंद, 25 पैकेट सफल और 50 पैकेट फ्लेक जब्त किए। और जब्त करके हम लोग उसको FIR के द्वारा जो हमारे थाना प्रभारी कोवाली हैं उनको हम लोग सौंप दिए। और इस दौरान वो जो मालिक है वो मालिक भाग गया है, इधर से कहीं से फरार हो गया है यहाँ से। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ? मामला तो 2 ही जन पर हुआ है, चालक के नाम पर। और मालिक फरार हो गया, उसका कोई बताया नहीं। थाना में उसका सब हमको बोल के दिया कि खाने पीने का सामान है, ठीक है ना। हल्का था, हम ले लिए। हम बोले खाने पीने का सामान है, हमने रख लिए। हम यहाँ लोग बोले जब सब लोग की खोल के देख लाओ तो देख रहे गुटखा उसमें भरा हुआ था। हमको भी मालूम नहीं था, मालूम रहता तो हम तो लेते नहीं। जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करेगा भी। मालिक था? हाँ मालिक? हाँ, जो दिया था वहीं से बिंजुए से ही। क्या नाम था मालिक का? इमदाद। कहाँ जाना था ये? टाटा जा रहे थे लेकर। किसका वहाँ? नाम क्या है? इमदाद का झाड़ू को देना। हल्दी पोखर पर किसी भी गाड़ी को मत छोड़िए। क्या नाम हुआ आपका? वही गुटखा के सामने बैठाइए। सब कुछ क्या बताइए। इसे कोई बड़ा भी बन जाइएगा ऐसा बेच के। गलती हो गया। सब गाड़ी ঝাড়খণ্ড ওড়িশা সীমান্তে পালিডি চেকপোস্টে বিপুল পরিমাণে গুটখা, সিগারেট উদ্ধার হওয়ার পরে পটকাশি ও বালেশ্বর গ্রামের নেতৃত্বে হলদিপুকুরের বেশ কিছু ব্যবসায়ী ও দোকানে অভিযান চালানো হয়। যদিও অভিযানের সময় কিছুই উদ্ধার করা যায়নি। পটকা অঞ্চল অধিকারী বালেশ্বর রাম বলেন যে ঝাড়খণ্ডে মাদক দ্রব্যের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার পরেও যদি কেউ গুটখা, সিগারেট ইত্যাদি বিক্রি করে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। नशीली पदार्थ का बिक्री करने के लिए प्रतिबंधित लगा दिया है। इसी आधार पर हम लोग कल तिरिंग गेट में भी चेक किए थे तो वहाँ मिला कुछ हल्दी पोखर के लोग गुटखा और ये सब ला रहे थे। इसीलिए हम लोग प्रिकॉशन लेते हुए जो शंकित है लोग उनके यहाँ से चेक कर रहे हैं कि ये, और ये अभियान हम लोग को हमेशा चालू रहेगा जिससे कि लोग नशीली पदार्थ बेच नहीं सकें। ठीक। বিশ্বব্যাপী মহামারীর কারণে তৃতীয় লকডাউনে লোকেদের সাহস এবং অসহায়তার একটি উদাহরণ ক্রমাগত প্রকাশিত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে গোমো থেকে মুম্বাই যাওয়া এক যুবক মুম্বাই থেকে অটো চালিয়ে ধানবাদে পৌঁছেছিলেন। যুবকটি বলেন যে তিনি মাত্র 10 দিনের জন্য মুম্বাই গিয়েছিলেন এবং লকডাউন শুরু হয়ে যায়।
এমন পরিস্থিতিতে তাদের সামনে অনাহারের পরিস্থিতি দেখা দেয়। ঝাড়খণ্ডের গিরিডি এবং ধানবাদ গোমায় বসবাসরত কয়েক ডজন মানুষ 2000 কিলোমিটার অটো চালিয়ে ধানবাদে পৌঁছায়। অটো চালিয়ে ধানবাদে পৌঁছে যুবক সদর হাসপাতালে পৌঁছে তার স্যাম্পল পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে এখান থেকে চেক আপের পরে যদি সবকিছু স্বাভাবিক থেকে যায় তবেই তিনি নিজের বাড়ি ঘুমোতে যাবেন। कहाँ से आए आप लोग? बम्बे से आए। टेम्पो से ही बम्बे से? कितना टाइम लग गया था? हम लोग 4 दिन लगा। बम्बे में क्या करते थे? वही और कितने लोग आए हैं? हम लोग आए हैं 5 जना है। यहाँ कहाँ घर है? हम लोग यहाँ पे गोमो। कितना टेम्पो आया वहाँ से? वहाँ से गिरिडीह में आया 18 रिक्शा, सब महाराष्ट्र से? सब बम्बई से। मुंबई से? हाँ 18 रिक्शा और गोमो में है 6-7 रिक्शा आया हुआ था। तो आप कहाँ गोमो के रहने वाले हैं? मेरा ससुराल है गोमो, मेरा घर है कतरासगढ़ मालखेड़ा। बीच में कहीं पूछताछ नहीं हुआ मुंबई से? हुआ, सब कुछ जो आपकी रसीद बना के दिया, पास करने वाले लेके जा सकते हो। तो यहाँ क्या सबको लेकर आए हैं जांच के लिए? हाँ बोला यहाँ जांच करा लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम असगर अंसारी है। हम लोग क्या यहाँ पे इतना दिन से पड़े हुए हैं लेकिन कुछ नहीं मिला, मजबूरन हम लोग को भाना। यहाँ से गए हुए हम लोग को सिर्फ 10 दिन हुए थे लेकिन कुछ मिला नहीं हम लोग को। और लास्ट में हम लोग जब ऑर्डर करने गया महाराष्ट्र के शिवसेना से ऑफिस के पास गया, शिवसेना बोला कि नहीं हम लोग पास कुछ नहीं आया है। हम लोग बोले नहीं रहता तो हम लोग क्या करूँगा रख के। तो मैंने पुलिस के पास गया, थाना चौकी में बोला कि मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ, बोलते लेके जाओ। लॉकडाउन जब खत्म होगा उसमें गाड़ी लेके यहाँ हाजिर होना है। বাঙালি কল্যাণ সমিতি কর্তৃক দামোদরপুরে দুস্থ অসহায় লোকেদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই খাদ্য সামগ্রী বিসিসিএল এর দ্বারা সিএসআর তহবিল থেকে সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সামগ্রীগুলিতে চিড়া, গুড়, ছাতু, ছোলা, বিস্কুট ইত্যাদির একটি প্যাকেট প্রস্তুত করে দামোদরপুরে দরিদ্রদের মধ্যে প্রায় 120 জনকে বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি সকলের শারীরিক তাপমাত্রাও পরিমাপ করা হয়েছিল, যা সাধারণ হিসেবে পাওয়া গেছে। বিসিসিএল এর অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং বাঙালি কল্যাণ সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় এই খাদ্য সামগ্রী সরবরাহে প্রশংসনীয় অবদান দিয়েছেন। आज दामोदरपुर गांव में बंगाली कल्याण समिति की ओर से एक जांच शिविर के साथ साथ खाद्य द्रव्य वितरण के लिए एक शिविर लगाया गया था। इसमें 120 करीब गांव वाले को उनको फूड पैकेट दिया गया और साथ ही इंफ्रारेड थर्मोमीटर से उनका शारीरिक टेम्परेचर को नापा गया। किसी को कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिला, सभी के सेहत बढ़िया ही था। और मैं सुजीत रंजन बंगाली कल्याण समिति के साधारण सदस्य हूँ। লকডাউনের কারণে যে যেখানে আছে সেখানেই আটকা পড়েছে। এদিকে উড়িষ্যা থেকে জামশেদপুরের সোনাড়িতে খ্রিস্টান বস্তিতে আসা বরযাত্রী প্রায় 60 দিন ধরে 30 থেকে 35 জন লোক আটকা পড়েছিলেন। আজ রাজ ক্লাব এবং রাজকুমারের সহযোগিতায় সোনাড়ি সার্কিট হাউস পেট্রোল পাম্প থেকে বাসের দ্বারা তাদের উড়িষ্যায় রওনা করা হয়। অন্যদিকে বিবাহিত দম্পতি রাজকুমারজিকে ধন্যবাদ জানান। Coming to Odisha, my family. That's why I am very lucky. So thank all our supporting sir, Rajkumar Singh sir, all our. Thank you. के द्वारा कौन पहल किया और कितना खुशी है? जिला उपाध्यक्ष राजकुमार जी के से हमारे बहुत ही ये कर रहे हैं, सपोर्ट किए हैं। जो जाने के हम लोग सब इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं जाने के लिए। कितने दिनों से थे यहाँ पे? कितने दिन हो गया था लॉकडाउन को लेकर? कोई 60 दिन। 60 दिन से। लेकिन अब आप लोग अपने घर जा रहे हैं तो खुशी है? हाँ खुशी है। अपना गांव उड़ीसा के लिए प्रस्थान किया। क्या नाम हुआ? इसमें और एक बात हम बोलेंगे, इसमें हमारा क्लब के रुपेश झा हैं, राजू बाग हैं, राकेश सिंह हैं, बहुत बड़ा योगदान रहा है। राज क्लब पूजा कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कार्य को करने के लिए। आज इसमें हम लोग सफल हुए हैं, अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा गर्व लग रहा है कि एक अच्छा कार्य हुआ। করোনা সংক্রমণ দিনের দিন বেড়েই চলেছে, যার কারণে লোকেদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু লোক রয়েছেন যারা এই মহামারীটিকে উল্লঙ্ঘন করে চলেছেন। সোনালী ডিসপেন্সারি রোডে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গ্রামীণ ব্যাংকে জিরো ব্যালেন্স খাতা খোলার জন্য উপচে পড়ে ভিড়।
এখানে প্রকাশ্যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সের অবমাননা করতে দেখা যায়। ব্যাংক থেকে ফর্ম শেষ হওয়ার কথা বললেও তার ভিড়ের উপর কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। এরপর পুলিশ পৌঁছে ভিড়কে সরানো হয়। किस लिए ये लोग आई हुई है? जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलाने के लिए, जो कि बैंक के स्टाफ बोल दिया कि ये खाता अकाउंट नहीं खुल रहा है। सोशल डिस्टेंस है यहाँ नहीं, सोशल डिस्टेंस लोग अपने नहीं किए तो आप क्या करें? क्या जगह का क्या नाम है? डिस्पेंसरी रोड सोनारी। और बैंक का नाम? बैंक का नाम झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। हाँ तो सर अब अपना नाम और परिचय बताएं सर। ये मैं सोनारी थाना से, मेरा नाम संजय कुमार यादव। यहाँ भीड़ क्या चीज़ का था सर? भीड़ वो जनधन खाता खुलवाने के लिए करके। तो कल से यह काफ़ी भीड़ लगा हुआ, तो इन लोगों को क्या पता नहीं कि किस सिस्टम से? पता नहीं था, यहाँ फॉर्म नहीं था, फॉर्म खत्म हो चुका था, जिनका भरा गया था वो उनका पासबुक, शायद जिनको पासबुक मिल जाएगा उन लोगों के लिए। तो ये तो बैंक द्वारा बताना चाहिए ना कि फॉर्म नहीं है। बताया गया था, लेकिन यहाँ का पब्लिक लोग तो जानते ही हैं, पैसा के लिए सब हो मचा देते हैं। तो ये जो हो रहा था इतना देर से, जो सोशल डिस्टेंसिंग पूरा दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लोग तो खुद मना किए, लेकिन यहाँ का महिला लोग माने नहीं। तो अभी आके आप लोग क्या किए? हम लोग तो भीड़ को हटाए। क्या बोल के हटाए? बोला कि अभी फॉर्म नहीं है, फॉर्म आने के बाद आप लोग का फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद खाता खुलेगा। ये कौन सी जगह है? ग्रामीण बैंक, गुजरी बाजार, सोनारी डिस्पेंसरी रोड। ভারতীয় জনতা পার্টি দ্বারা আজ ভোজন বিতরণ করা হয়। এদিকে আজ বিশেষ রূপে অভিযান চালিয়ে গরু এবং সেই সমস্ত প্রাণীগুলি যেগুলি রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় সেগুলিকে বিজেপি কার্যকর্তার মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বে খাবার খাওয়ানো হয়েছে। এই কার্যক্রমটি নিয়মিত চলছে। এই কার্যক্রমটি গতকাল বিষ্ণুপুরে এবং আজ সোনারীতে করা হয়েছে। मन को भोजन उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं आज विशेष रूप से अभियान चलाते हुए जो अपने गाय माता है या अन्य जानवर है जो सड़कों पर घूम रही है, जिन्हें भोजन की आवश्यकताएं हैं, उसकी आपूर्ति करने के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज निकले हैं। अपनी महिला मोर्चा की नेत्री रीता मिश्रा के नेतृत्व में इस अभियान को गति देते हुए आज सोनारी में, निरंतर वो बिष्टुपुर में सेवा कर रही थी, आज सोनारी में जो गौ माता है और अन्य जानवरों को भी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही, ताकि वो भी अपने भोजन के माध्यम से अपने पेट को संतुष्ट कर सकें। मानव जाति की सेवा में इन पशुओं का जितना योगदान है, इनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और हमारी गौ माता को रोटी खिलाने के साथ साथ हम लोग तालाब में मछलियों को भी चारा दे रहे हैं। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।